Hello guys, welcome again to my YouTube channel. First of all, I would like to thank you all as we have completed our 1000 subscribers. Thank you so much for your love and support. And as I have asked you all which subject should I teach, and I came to know that along with the child development and pedagogy, students want me to teach biology also. So from now on, I'll be teaching both the subjects on alternative days. Today I will be starting class plus 1 biology NCERT plus moderns. So please don't forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. So let's start. So when we are talking about biology, there are two main branches of biology. One is your botany and another one is your zoology. Botany, it deals with the study of plants, and zoology, it deals with the study of animals. So while reading about biology and its two branches, botany and zoology, we must remember the names, that who is the father of biology, who is the father of zoology, and who is the father of botany. So father of biology is Aristotle, father of zoology is Aristotle, and the father of botany is Theophrastus. So father of biology and father of zoology same है, that is Aristotle, and the father of botany is Theophrastus. तो इन्हीं दो नेम के साथ हमें एक और इम्पॉर्टेंट नेम याद रखना है, दैट हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के डार्विन किसे कहा जाता है? सो अर्नेस्ट मेयर इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. ही वॉज बॉर्न इन 5th जुलाई 1904 इन कैम्पटन, जर्मनी. तो ये नाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अभी करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीशीज की, वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी. सो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, एंड ही वाज अवॉर्डेड विद द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्यों इन्हें अवार्ड किया था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से? बिकॉज इन्हें तीन मेन अवार्ड्स मिले थे. फर्स्ट इज योर बेल्जन प्राइज, सेकेंड वन इज योर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, एंड थर्ड वन इज योर क्रैफोर्ड प्राइज. सो आपको इनकी डेट्स याद रखनी है. बेल्जन प्राइज इन्हें 1983 में मिला था. इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी was given in 1994 and Crawford Prize was given in 1999. So 1983, 1994 and 1999, you should remember the dates. After that he died at the age of 100 in the year 2004. He died at the age of 100. 100 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी थी. और उस टाइम कौन सा सन था? सन 2004. So now let's study the first chapter of biology class plus 1, that is the living world. So open your NCERTs. So let's start. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest. Deciduous forest आपको पता है कि इनमें ऐसे पेड़ पाए जाते हैं which shed their leaves once in a year. Oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs leave us speechless. The beauty of a galloping horse आपका होता है running horse, or the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes awe. तो हम different living habitats देखते हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो, चाहे वो डेजर्ट्स हो, चाहे वो डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, चाहे वो ओशियंस हो, चाहे वो फ्रेश वाटर लेक्स हो. सो हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके हम डिफरेंट लिविंग हैबिटेट्स देखते हैं, हम डाइवर्सिटी देखते हैं उनके लिविंग हैबिटेट्स में. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज लिविंग? लिविंग है क्या? एंड इसी क्वेश्चन के साथ टू मोर क्वेश्चंस होते हैं कि अगर लिविंग है तो नॉन लिविंग क्या है, एंड व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, कि हमारी इस लाइफ का पर्पस क्या है. बट एज अ बायोलॉजिस्ट वी शुड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग. और इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वी विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, तो फर्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. तो growth के two characteristics क्या है? एक तो increase in mass and second characteristic हमारा है increase in number. So increase in mass and increase in number are the twin characteristics of growth. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हमारे होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं.
एंड आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, बट जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है। और जो हमारी सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है विच अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज, वो किस लिए होता है? जो हमारे लॉस्ट सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। हमने क्या बोला? हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी? एक तो इंक्रीज इन मास एंड अनदर वन इज इंक्रीज इन नंबर। बट अगर हम इंक्रीज इन मास की बात करते हैं तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सैंड, अगर मान लो ये एक पहाड़ी है, इस पे सैंड इकट्ठा होता जा रहा है, देन इसकी हाइट जो है ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। यस, हियर इज ऑल्सो इंक्रीज इन मास इज टेकिंग प्लेस। सो growth could not be the only defining property of living organisms, because इसमें हमने क्या एक्सेप्शन देखी? जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें भी ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सैंड रॉक्स उसमें भी हमारी ग्रोथ देखी जा रही है, चाहे वो एक्सटर्नल है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम इंटरनल ग्रोथ भी देखते हैं। नेक्स्ट हम जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। You know that reproduction is of two types. One is your asexual reproduction and the another one is your sexual reproduction. In asexual reproduction, one single parent is there, and in sexual reproduction, fusion of male gametes and female gametes takes place. In multicellular organisms, जो progeny होती है उनके जो फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ पेरेंट्स। इट कुड बी लेस इन नंबर और इट कुड बी मोर इन नंबर। बट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहेगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सो इट विल बी नो। वाई इट इज नो? बिकॉज हेयर इज वन एक्सेप्शन कि जो हमारी स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, जो हमारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, जो हमारे म्यूल्स होते हैं, क्या अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कंसिडर होंगे? सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन, that is why reproduction could not be the defining property or could not be the defining feature of living organisms. So next हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जो भी हमारी बॉडी में मिलियंस और बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। And it could be of catabolic reactions and it could be anabolic reactions. When we are talking about catabolic reactions, it is a destructive process because यहाँ पर molecules का breakdown होता है। Okay, so because breakdown of molecules take place in this reaction, it is known as catabolic reaction, or we can say that it is a destructive process. Whereas in anabolic reactions, it is known as constructive process because यहाँ पर molecules form होते हैं, यहाँ पर building up reaction भी हम इसे कहते हैं। And whenever we study biology, we see these two terms, in vivo and in vitro. इन दोनों का मतलब क्या होता है? जो इन विवो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे लिविंग सेल्स में, हम एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमंस का, वो हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। ओके, रिएक्शंस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अस, reactions is taking place in living cells as in humans, whereas in vitro fertilization reactions are performed in laboratories. It is an artificial reaction भी हम इसे कह सकते हैं because हम इसे laboratories में perform कर रहे हैं, हम इसे test tubes में perform कर रहे हैं। Okay, so yes, you know the difference between in vivo and the in vitro. ओके, सो यहाँ पर जब हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, जब हम मेटाबॉलिज्म को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले रहे हैं, हम डिफाइनिंग फीचर ले रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो जब हमारा रिएक्शन है तो इट शुड बी इन वीवो रिएक्शन। एंड मेटाबॉलिज्म के मैंने आपको टू टाइप्स बताए, वन इज योर कैटाबॉलिक एंड अनदर वन इज योर एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बिल्डिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। हमारी बॉडी में दोनों ही रिएक्शंस होते हैं। ओके, सो मेटाबॉलिज्म इट कुड बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट कुड बी the defining feature of life forms or living organisms, right? So next characteristic हम देखेंगे consciousness का। So we sense our environment through our sense organs, and plants respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc.
So all living organisms are aware of their surroundings, but human beings is the only organism who have self consciousness. It is very important. So because of this, consciousness is the defining property of living organisms. ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अवेयर है ऑफ हिमसेल्फ. इट हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. सो कॉन्शियसनेस could be the defining property of living organism. Yes. So that is all about today's video. टुडे फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा जिसमें हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा एंड इट्स टू मेन ब्रांचेस दैट इज़ बॉटनी एंड जूलॉजी. बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं. आफ्टर दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट का नेम हमने पढ़ा दैट इज़ अर्नेस्ट मेयर. एंड अर्नेस्ट मेयर के बारे में हमने पढ़ा कि इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के से भी हमने इन्हें सम्मानित किया था. क्यों हम इन्हें ऐसे कहते हैं दैट ही वाज अवॉर्डेड विद द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. सो जिसमें हमने 3 प्राइजेस पढ़े थे, द बेल्जन प्राइज़, द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड द क्रैफोर्ड प्राइज़. आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि इन्हें हम द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं, राइट. आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने सबसे पहले एक करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. तो सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी दैट इज़ ग्रोथ. बट हमने देखा था कि येस राइट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड प्लांट की जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ होती है, बट एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो अप टू अ सर्टेन एज होती है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है उनमें भी हम ग्रोथ देखते हैं, बट उनकी जो ग्रोथ होती है दैट इज़ एक्सटर्नल. हमने पढ़ा था कि ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एको ग्रोथ इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन नॉन लिविंग बींग्स. येस, सो दैट इज़ वाई ग्रोथ इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट हमने सेकेंड करैक्टरिस्टिक पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में. रिप्रोडक्शन में आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट वन इज ऑफ एसेक्सुअल टाइप एंड द अनदर वन इज योर सेक्सुअल टाइप. येस, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट दैट कि जो इसमें एक्सेप्शन थी हमारी मेन दैट वाज कि जो स्टेराइल मेल वर्कर बीज होती हैं या फिर जो हमारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं या फिर जो म्यूल्स होते हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो लिविंग नहीं कंसिडर होंगे. So yes, because of this exception, reproduction is also not considered as a defining property or defining feature of living organism. Yes, after that metabolism में I have told you about catabolic reactions, anabolic reactions, कौन सा constructive process है, कौन सा destructive process है, कि कौन सा building up process है, yes, कौन सा breakdown process है. ओके, सो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको इससे रिलेटेड एक और बात बताई थी, इन विट्रो क्या है, इन वीवो क्या है. येस, सो मेटाबॉलिज्म भी हमने डिफाइनिंग फीचर कंसिडर किया था. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. एंड आफ्टर दैट कॉन्शियसनेस में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स वगैरह हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, वेयर एज ह्यूमन बींग्स जो हैं इट इज़ ह्यूमन बींग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज़ ही हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस. Yes, so consciousness therefore becomes the defining property of living organisms. Yes, so इसके बाद हम next पढ़ेंगे next class में. So that is all about today's class. Please don't forget to like, subscribe and to share my channel. Keep supporting, keep motivating. Thank you.